Lamont. Lamont. سيك 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 سيء لمون وشوف لمون पाकिस्तानी नयाद अखबार फरोश अली अकबर पेरिस में कई दहाइयों से अखबार बेच रहे हैं। उनसे सरे बाजार मुलाकात हुई। He is my from Peshawar. My friend from Peshawar. Okay. If Hello. you want to ask something. Hello, sir. Hello. You are from Peshawar? No, I'm not from Peshawar, but I went to Peshawar. Oh, you went to Peshawar Every year. I For see many you. years. every year. My ex-wife is Si, si. Pashtun and lived near quite near Peshawar, near Mardan. Okay. So I went to the frontier every year. Oh, very nice. Yes, Spent 20 years in Northern. but I didn't live there, but I went for 20 years every 20 year. years. He knows the Every history year. of Pakistan. Every year, absolutely. He knows the history of Okay. India. He knows all the ancient. Yeah, all the sites Exactly. in Taxila and so forth. Taxila. I like the museum of Lahore is fantastic. Oh, well, fantastic. The only thing is in Lahore there was too much pollution. Oh yeah. Yes. Very, True, very true, polluted. true, true. Maybe it's better now. Like Delhi. Same. But they are trying now. Yeah. What do you like most about Pakistan? What do I like most about Pakistan? I think it's a beautiful country first. I like the culture, I like the people, and I like the beauty of the country. Good. And I think it's For 20 years you have been going there. I think it's a country with an enormous potential. It's a pity that it's so corrupt. Yeah, voilà. Ali, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵਾਲਾ That's true. Okay, lads, well I have to go to Brussels. Okay. So See you. Go on. Thank you. I'm Cyril. Okay. Ça y est, ils sont là-bas, l'équipe, il y a tout. हाल ही में उन्हें उनकी खिदमात पर फ्रांस के सदर मैक्रोन ने आला तरीन एजाज से नवाजा है। वो मुनफरिद अंदाज और ड्रामाई आवाज में अखबार बेचने के फन के माहिर हैं। Lamont. سيك سيء Lamont. وشوف Lamont. Ça y est. Vous allez encore être sur Instagram. Ça y est. Non, c'est pour la télé pakistanaise. Ah, Ça y est. il est souvent sur Instagram. Moi, je le vois Aussi, souvent. ça. Quel succès qu'il a. Ça y est. Lamont, vous êtes filmé. Prenez-le. New York Times. New York Times. Yes, please. Merci beaucoup. Thank you. Merci. 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 C'est bon. Oh, merci. Lamont. Ah, ça y est, Lamont. Breaking news. No way. Breaking news. She's got twins. Breaking news. Bonjour. Lamont. Ça y est. Lamont. Ça y est. C'est mes filles. My daughters. Ça y est. Lamont. Cette fois-ci. Allez-y. Lamont. Bonjour. अकबर अली साहब, आप रावलपिंडी में कभी छलियां बेचते थे, भुट्टे बेचते थे और 50 साल पहले आप यहाँ आ गए और अब आपको दुनिया के पहले न्यूज़ हैकर हैं जिनको फ्रांस का सबसे बड़ा अवार्ड मिल रहा है, सदारती अवार्ड मिल रहा है। यहाँ पे हर कोई आपको पहचानता है। तो जब पाकिस्तान से आए उस वक़्त क्या हालात हुए थे? हाँ, पाकिस्तान में मेरे कैसे हालात थे ये देखिए जी, मैंने छोटी सी उम्र में वहाँ पे मेहनत मजदूरी शुरू कर दी थी। मेरे वालिद साहब वो जो आरिया मोहल्ला है रावलपिंडी में, उसके चौकीदार रहे हैं। तकरीबन 25-30 साल चौकीदारी की उन्होंने। तो मैं भी उनके साथ छोटे मोटे काम
कभी शादियाँ वादी होनी, कहीं वहाँ पे प्याज काटने लग गए, मसाले बनाने लग गए, आग लगानी, जो भी मिलता था, घास भी बैठता था वहाँ मरी रोड पे। कितनी मजदूरी मिलती थी? उस ज़माने में आने मिलते थे जी, कुछ 4 आने 6 आने, ऐसे 60s का ज़माना था। तो और मैंने बस उनमें हम खुश थे, उस गुर्बत में भी खुश थे। लेकिन अब दौर पैसे का आ गया है, बड़े बड़े बंगले आ गए, गाड़ियाँ आ गई, मोहब्बत ख़त्म हो गई। चौकीदारी करते करते उस वक्त के क्या हालात थे जिनकी वजह से आप यहाँ आए? वो ऐसे था सुहेल साहब कि मेरे वालिद साहब जो थे वो आर्या मोहल्ले में चौकीदारी करते थे। तो वो मेन मरी रोड था, तो दूसरी साइड पे एक और भी आर्या मोहल्ला था, उसको जे कहते थे। तो वहाँ पे ना एक पुराना हिंदुओं के ज़माने का बना हुआ घर था। तो उसके अंदर एक वकील अपनी रात को प्रैक्टिस किया करता था। तो उसका एक क्लर्क होता था, तो उसके क्लर्क की साइकिल खड़ी होती थी नीचे। तो मेरे वालिद साहब थे चौकीदार, तो वो कहने लगे कि असगर तुम हमारी साइकिल के आके कुछ देखभाल कर सकते हो, चौकीदारी। तो मेरे वालिद घर में ये कह रहे थे, तो मैंने इनकार कर दिया क्योंकि वो बहुत दूर था, उस सड़क से उस तरफ है जी, उस बाज़ार से जहाँ पे मेरे वालिद साहब। तो मैंने कहा जी मुझे बड़ा शौक़ था, मैंने कहा 11-12 बजे तक काम है, मैं जाता हूँ, मैं जाके चौकीदारी करूँगा साइकिल। तो जी मैंने वहाँ पे जाके, वो थोड़ा सा था बना हुआ, तो पहली मंजिल में होते थे वकील साहब, बिलाल वकील नाम था। तो मैंने थोड़े पे बैठा हुआ कम्बल ओढ़ के, तो एक डंडा से मेरे हाथ में था। तो साथ एक छोटी सी गली थी जो कि काली रोड पे चली जाती थी। तो वहाँ से मुझे इस गली में से आवाज़ आती है पंजाबी ज़ुबान में, पंजाबी में। तो क्या ये आवाज? मुझे आवाज़ आई चीखने की, वीरो छड़ दे मैनू, वीरो छड़ दे मैनू। मेरी उम्र थी 16 साल, छोटी सी उम्र थी मेरी, इतना बड़ा भी नहीं था। तो मुझे बड़ी, मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है। मैं उठा तो देखूं 2-3 लड़के लोफर से उस इलाके के, उस लड़की को उसका बुरखा खींच रहे थे, और उसकी गोद में था बच्चा तकरीबन 8-10 महीने का। तो बक्सा भी था उसके हाथ में। उस वक्त शायद आपको याद हो, न्यू खान जाया करती थी लाहौर। तो वो जो बस थी वो मिस हो गई बेचारी से, वो कहीं आई थी किसी कस्बे से, तो बहका के ले आए उधर। तो उसके साथ रेप उसकी कोशिश कर रहे थे, ज्यादती कर रहे थे। तो मैंने उनको जाके कुछ अपनी जुबान में कहा, क्या कह रहे थे, छोड़े नो। कहने लगे तू कौन है? मैं कहा मैं जानती नहीं, मैं चौकीदारी कर रहा थी। कहते तेरे प्यो ने जाने तू कितने की चौकीदारी कर। मैं कहा मैं इतने की चौकीदारी कर रहा हूँ। तो मेरे से बदमाशी कर रहे थे पंजाबी देख। मैं क्या गल सुनो, उसने छोड़ना कि मेरी उम्र मेरे से उम्र में भी बड़े थे। मैंने कहा तुम्हें छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है। मैं जैसे ही जाने लगा ना अपने बाप की तरफ बुलाने के लिए, तो वो जनाब उन्होंने डर के छोड़ दिया, लड़की को छोड़ दिया। और उसे छोड़ दिया तो बेचारी लाहौर की थी। तो मैंने मेरे तो सर्दी थी जी, मेरी सर्दी चली गई, इतनी जोश में था गुस्से में। और मैंने अपना कंबल उसके ऊपर डाला, उसके बच्चे के ऊपर। मैंने कहा बाजी तुसी मेरे वाल देखो, मैं तुहाडा भाई हाँ, अपने बच्चे को बचाओ, ठंड लग जाइए। बुरखे सी, मैं क्या बैठे यहाँ पे बैठे थड़े पर, मैं आपका कुछ बंदोबस्त करता हूँ। उसको मैंने थड़े पे बिठाया कंबल के साथ। तो या वकील साहब के पास, मैंने कहा सर नीचे केस हो गया। तो ऐसे ऐसे कोई लड़के थे, उसको खातून को तंग कर रहे थे, लड़की को, गोद में बच्चा उसको। वो आया नीचे, उन्होंने देखा, कहते जाओ अपने फादर को लेके आओ, हम देख रहे हैं इसके यहाँ खड़े हुए। मैं जी गया उस मोहल्ले में, आर्या मोहल्ले में, वहाँ से अपने वालिद को लेके आया। उस खातून को हमने होटल में ठहराया रात को, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग जो है ना, उसको हमने बस में बिठा दिया तो लाहौर में। तो क्या उस खातून की, जिस खातून को आपने बचाया, उसकी दुआ लगी? तो हो सकता है उसकी दुआ से आज मुझे ये अवार्ड मिल रहा है। बच्चे की भी लगी होगी, हो सकता है, इतना सा बच्चा, तो मैंने उसकी जान बचाई है जी। तो सदारती अवार्ड इस वजह से मिल रहा है? नहीं, ये तो इनको तो नहीं पता ये मैंने किया है, लेकिन ये तो हो सकता है अल्लाह की तरफ से। ये जो भी कुछ हो रहा है, मैं सबसे पहले इसको अल्लाह और मेरी माँ की दुआ, क्योंकि मेरी माँ, मुझे याद है, मैं भी खाने नाश्ते के वक्त मैं आपको बता रहा था, तो बेचारी वो गोबर के उपले होते थे ना, तो गीले होते थे। बाज़ का मानसून का ज़माना था, वो जब मौसम आता था, तो बेचारी फूंक मार रही होती थी वो उपलों में। तो
मेरी नानी पास ही बैठी होती थी, तो पेट फूला हुआ होता था मेरी माँ का। मैं क्या पता नहीं अब्बा ने कुछ मार दिया है, क्या जख्म हो गया है, मैं तो ये समझ रहा था। और बाद में पता चला तो बच्चे होते थे यार। मैं सबसे बड़ा था, मैंने ये हाल देखा जब मैंने कहा क्या है ये। अच्छा, तो जब गिर जाती ना चक्कर आते तो कपड़ा सा बांधा होता था माथे पे। तो मेरी नानी जो थी, आपकी वालदा अभी तक जिंदा है, कितने साल उम्र है? माशाल्लाह 96, वो तो ओवर 90s हो गई अब उनकी। अच्छा, जब आप यहाँ आए फ्रांस में तो शुरू में क्या हालात आपने देखे? डिक्की लगा के आए? थे जब डिक्की लगा के आए? नहीं, डंकी मैंने कहीं नहीं लगाई। अच्छा मैं वीजे के साथ आया था, अच्छा। मैंने कोई गलत काम नहीं किया। जबकि पाकिस्तानियों ने और यूनानियों ने भी, मैं लंदन में था, हमारा जहाज जो शिप था लंगर अंदाज हुआ था ग्रेव सैंड में, हाँ। तो वहां पे 2 पाकिस्तानी जंप कर गए थे, लेकिन वो आई इमिग्रेशन मेरे से सवाल जवाब करने लगे। मैंने उनको एग्जैक्टली जो कुछ है सही बताया, उन्होंने मुझे छोड़ दिया। मैं सैर जाता हूँ लंदन, मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं। और अमेरिका में ग्रीक जंप कर गए थे, न्यू ऑर्लियंस में 2 ग्रीक जंप कर गए थे, वहां पे भी वही हुआ, क्वेश्चन होने लगे मेरे से। इमिग्रेशन वाले आए ऑफिस में, हाँ। कैप्टन के केबिन में। हाँ। मैंने उनको भी ये कहा, मैंने कहा नो, आई विल नॉट डू दैट। इफ आई नीड टू स्टे इन योर कंट्री, आई विल ट्राई टू फाइंड a solution, a legal way, that's it. I will not jump in your country, never. I will never do that. फ्रांस में आते ही क्या हालात देखने पड़े? When I arrived in France, I was just like autistic. I was really lost. क्यों जरा उर्दू में बताएं। क्योंकि मैं बिल्कुल खोया हुआ, जैसे ना कुछ जुबान आती, ना कुछ जान, ना पहचान। और अपने लोग तो आपको पता है जब मुश्किल में हो तो आपके काम नहीं आते हैं, या आपको पता होगा कि हमारे लोग कोऑपरेटिव नहीं है। इसमें मैं अब पाकिस्तानी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन जो फैक्ट है वो फैक्ट है। जब आप गुर्बत में होते कोई आपका साथ नहीं देता है ना जी। तो ऐसा ही था। एक दफ़ा तो एक पाकिस्तानी थे, उन्होंने मेरे पे ये इल्ज़ाम लगा दिया था, उनकी मैंने हेल्प भी की थी, जबकि तो मुझे अपने घर ले गए कमरे में, उनकी मैंने हेल्प की, उनको जॉब ले दी थी कहीं, तो उन्होंने मुझे पे इल्ज़ाम 900 फ्रेंच फ्रैंक का इल्ज़ाम लगा के घर से निकाल दिया था। बदकिस्मती हमारी ये है, हमारे लोगों में अच्छे लोग हैं, लेकिन अब मेरी डेस्टिनी ऐसी थी, तो मैं अब क्या बताऊँ। तो फिर वो बड़े धक्के धुक्के खाए मैंने, बड़ी परेशानियाँ देखी। तो ये लोग तो पता ही आपको, हमसे भी ज़्यादा रूड हैं। अगर आप बाहर से आउटसाइडर हो ना, तो आपको ये एक्सेप्ट नहीं करते, कहते कहाँ से आ गया ये भिखारी हमारे मुल्क में। द पब्लिक दे डोंट एक्सेप्ट यू। तो लेकिन ये है कि यहाँ पे जो सिस्टम है ना, सिस्टम इटसेल्फ प्रोटेक्ट द पीपल, उससे आप जो इनके लॉज हैं। कहाँ सोते थे, कहाँ से खाते थे? मैं ये पुल यहाँ पे पुल के नीचे सोया, ये सैन नहीं है, रिवर सैन, उसके पुल के नीचे सोता रहूँगा, स्लीपिंग बैग के अंदर रात को। तो ये यहाँ पे स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी, यहाँ पे जो होते हैं ना स्टूडेंट्स, उनके ये बने हुए थे, ये क्या कहते हैं इनको, कैंटीन। वहाँ पे मैं 2 फ्रैंक में खाना खाता था जाके, 2 फ्रेंच फ्रैंक्स में। यानी मैं मैक्सिमम कोशिश करता पैसे बचा के ना। उस वक्त 600 यूरो तनख्वाह होती थी, फ्रेंच फ्रैंक सॉरी। तो मैं अपनी माँ को 1000 फ्रेंच फ्रैंक्स भेज देता था हर महीने, क्योंकि बड़ा कुनबा था, 7-8 बहन भाई थे, तो मैं बड़ा था सबसे, तो कुछ करना था उनके लिए, तो वो करके मैंने कर दिया वो अपना। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सक्सेसफुल, सक्सीड इन माय स्ट्रगल। इट वाज टफ बट आई सक्सीड। आपके खुद कितने बच्चे हैं? मेरे 5 बेटे हैं। क्या कर रहे हैं? वो कुछ कर रहे हैं जॉब, कुछ मास्टर किया हुआ, कुछ ने की अपनी कंपनी है, वो अपने सेटल्ड है, सारे सेटल? सब सेटल्ड। आपकी मशहूरी, आपका ये मकाम, ये कैसे मिला? क्या इसके पीछे क्या राज है? हाकर तो कई होते हैं दुनिया में। राज यही है जी, एक तो मैंने देखे जी, अगर आप सब्र से चलते रहेंगे ना एक डगर पे, मैंने गोल बनाया था भाई, और फिर जिंदगी में ये मैंने तय कर लिया था कि भाई हराम नहीं खाना है। वो तो पाकिस्तान से शुरू कर दिया था, नहीं तो मुझे $100 गलती से अमेरिकन एक्सप्रेस वाली लड़की ने दे दिए थे। आर्मी प्रिंटिंग प्रेस वालों को पता है इस चीज़ की, इस कहानी का। बैंक रोड पे एक आर्मी प्रिंटिंग प्रेस होती थी, ये अगर वो सुन रहे होंगे या देख लेंगे तो उनको पता चल जाएगा। तो मैं $100 उसको मैं वापस करके आया था। मैंने गुर्बत में अपनी ईमानदारी का पल्ला नहीं छोड़ा। तो अब यहाँ 70-73 साल की उम्र में आके मैं शुरू कर दूँ गलत काम, तो सब्र से रहें, आप मेहनत से काम करते रहें। अपने मुल्क का अगर बनाना इमेज, तो आप मेहनत से और ईमानदारी से रहेंगे ना, तो आपका इमेज बनेगा।
जैसा कि जापानियों ने बनाया हुआ। उन लोगों ने मेहनत की, अपना एक इमेज बनाया। हम लोगों ने तो अपना इमेज खोया हुआ है। हम तो बड़े उल्टे सीधे काम करते रहे हैं और किए और अभी भी कर रहे हैं। आपने सुना भी होगा और पढ़ा भी होगा। सुना है फ्रांसीसी सदर और कई वजीर भी आपसे अखबार लेते रहे हैं। Oh yes, when they were studying in the political science institute, वहाँ पे ना, तो मैं वहाँ पे अखबार बेचता था। हाँ। तो वहाँ से बहुत से स्टूडेंट्स जो है ना, वो मेरे से अखबार लेते थे। तो बहुत सारे जो आज वही मिनिस्टर बने हुए हैं, कोई प्रेसिडेंट बना हुआ है, कोई कहाँ है, कोई एम्बेसडर है, कोई कहाँ है, कोई कहाँ है। और उन्हीं में से कुछ लोग जिनको मैं पाकिस्तान लेके जाता रहा हूँ, तो जब ये छुट्टी होती थी ना अगस्त की, तो मैं अपने माँ बाप को, अपनी माँ को, अपने फैमिली को मिलने जाता था। तो 3-4 स्टूडेंट लेके चला जाता था वहाँ से। तो उनको मैं अपने घर में रखता था। मेरा जो माली है ना, वो उनको खाना भी बना लेता था, उस मर्दान का था। तो वो मुझे पैसे देने की कोशिश करते थे, क्योंकि उनको खाना वाना प्रोवाइड करता था और रहायश। तो मुझे तो कोरियों को वहाँ पे मैं फ्रेंच कमा रहा था, तो मुझे तो वो महंगी लगती नहीं थी वहाँ पे। मैंने कहा ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है, ये वही मुझे पैसे नहीं चाहिए। तो मैं उनकी बेलौस खिदमत करता रहा हूँ, उनको गाइड करता था। 3-3 हफ्ते मैं वहाँ पे ना पहाड़ों में उनके साथ फिरता होता था। तो कोई पैसा नहीं लिया मैंने, वरना आजकल तो किसी को सलाम करे तो 10 यूरो मांगते हैं आपसे। तो मेरे में ये है, मैं किसी का अल्लाह मुझे दे दे तो उसमें बरकत डाली, जो थोड़ा बहुत मिल जाता है। कौन कौन से आपको नाम याद है सदर मैक्रोन के अलावा जो आपसे अखबार लेते रहे हैं? अभी कल की बात है, यस्टरडे आई वाज विद उबर विद्रिन, उबर HUBERT विद्रिन उसकी फैमिली का नाम है, VIDRIN, उबर विद्रिन, वो जो कि फॉरेन मिनिस्टर भी रहा है। तो उसके साथ था मैं, तो खाना खा रहा था अपनी वाइफ के साथ। मैंने कहा मसूब है फ्रेंच में, आपको मैं दावत दे रहा हूँ अपने प्रेसिडेंट हाउस में, मेरी जो सेरेमनी हो रही है ना, उसमें आप आएँ? कहते ये है, यस ही विल कम, देयर आर फ्यू मिनिस्टर्स हु विल कम फॉर द सेरेमनी, फॉर द डेकोरेशन। आपने यहाँ क्या सीखा जो हमारे पाकिस्तानियों को आप पैगाम देना चाहेंगे कि वो करें तो हम पाकिस्तान तरक्की करेगा? अगर आप कौम का सोचेंगे ना, सबसे पहले आप अपने आप में यकजाती लाएं। ये सूबों के ये झगड़े, ये फिरका वारियत, ये ख़त्म होनी चाहिए। हम सब भाई हैं, कोई शिया है, कोई भी है, इंसान तो है ना जी, हम सब इंसान हैं। ये क्यों ये लड़ाई दंगे फसाद होते हैं पाकिस्तान में? ये जो कोई हवा पता नहीं क्या है, कोई क्या है, मुझे तो पता भी नहीं जी। मैं तो क्योंकि आई एम नॉट रिलीजियस, यू नो, मैं तो सबकी इज्जत करता हूँ एज ए ह्यूमन बीइंग। जब आप अखबार बेचते थे तो कितने पैसे रोज कमाते थे और कितने का अखबार बिक जाते थे? उस वक्त तो बहुत कम थे शुरू में, लेकिन उसके बाद फिर काफ़ी मैंने इसमें पैसे बनाए। लेकिन उसके बाद फिर इंटरनेट आ गया। इंटरनेट आने से फिर आपको पता ही है, नहीं तो अब तो डिजिटल अखबार का जमाना चला खत्म गया। है। तो अब आपका कैरियर क्या बना? मेरे करियर ऐसे, जैसे अब देखें वो लोग बैठे हुए हैं, हाँ। मुझे ले लेते हैं, मेरे से मुझे हेल्प करने की, मुझे हेल्प करते हैं। वो कहते हैं अखबार ले हाँ, लेते हैं। ले लेते हैं मुझे, यानी कि हेल्प कर देते हैं बेचारे के, यार ये कई सालों से बेच रहे हैं, इसकी कुछ। कितने साल हो गए आपको बेचते हुए यहाँ पर? मैं यहाँ से अब 73 से बेच रहा हूँ, जनवरी 73 से पेपर बेच रहा हूँ। अच्छा। इसी इलाके में। अच्छा, तो सारे लोग आपको पहचानते हैं? सब जानते हैं मुझे यहाँ, सब तकरीबन जो भी मिलेगा वो, कोई ऐसा बंदा नहीं, क्योंकि मैं यहाँ के मीडिया ने भी, अब इस ये वो जो इस खातून ने, इसने मेरी डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जर्मनी में। ये सौदा लेके आई थी मेरे घर में, पता नहीं किसी पाकिस्तानी स्टोर पे गई इजाजत, हाँ, और इसने ना, यही है, हाँ। ये रहती यही है, लेकिन ये जर्मन टीवी उसके लिए काम करती थी। अच्छा, Tu sais, j'étais en train de parler de हेलो मैम। le document. Oui. Oui. इसने मुझे ये, अब ये ils comprennent pas le ils comprennent pas le français. हेलो मैम। You speak English? Yes, I speak English. In my film, look at it. Thank you. Thank you. Merci. Merci beaucoup. Yes, she was with the. Thank you. So kind. Merci. Merci beaucoup.
पेरिस के दिल शाज़े लीजे पहुंचे। जुल्फकार अली भुट्टो और बेनजीर भुट्टो के पसंदीदा रेस्तोरां पहुंचे। पाकिस्तानी नयाद बिजनेसमैन इकबाल लतीफ ने पुरतकल्लुफ चाय का इंतजाम किया। मैं अली अकबर साहब को, मैं 40-45 साल से पेरिस में रहता हूँ और पेरिस सेंट जर्मेन पेरिस का अच्छा एरिया है। पेरिस का जैसे लाहौर टी हाउस है वो इलाका है। इंटेलेक्चुअल्स ऑफ पेरिस की सिद्ध है, ये वहाँ पर बैठते थे और इधर ही ये अली अकबर साहब अखबार बेचते हैं और इन्होंने अपना जो भी काम किया बहुत मेहनत के साथ, बहुत इज्जत के साथ, बहुत एहतराम के साथ किया। आप ये बताएं कि बड़ी तवील जिंदगी आपने बैरून मुल्क गुजारी, सबसे मुश्किल दिन कौन सा था? सबसे मुश्किल दिन वो तो बहुत से दिन थे। जब मैं यहाँ पे फ्रांस जब पहुँचा था तो मेरे पास तो वगैरह मेरा वीज़ा एक्सपायर्ड हो चुका था। उसके बाद फिर मुझे इलीगल रह के अपनी काम करता था, जबकि मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन यह कि मजबूरी थी। वो चोरी चकारी तो मैंने नहीं की, लेकिन मजदूरी करता था, लेकिन ये लीगल नहीं था। तो बस वही मुश्किल दिन थे, कठिन दिन थे। तो कभी ऐसा भी हुआ कि खाने को कुछ ना मिला हो? मैंने आज तक अपने पेट के बारे में सोचा नहीं। मैं जो मिलता था खा लेता था, जो कुछ भी मिला मैंने खा लिया। अपना हर चीज़ मैंने सेक्रीफाई किया अपने ख़ानदान के लिए। अब उनको ये नहीं पता मेरी ज़िंदगी कैसे गुजरी, कैसे कैसे माहौल से गुजरा हूँ मैं। एनीवे, तो अल्लाह का शुक्र है, अब तो 40-45 साल से ऊपर तो मेरी अब शादी को हो गए। शादी कहाँ की? शादी मैंने पाकिस्तान में। अच्छा, तो वाइफ को यहाँ के मुश्किलात तो पेश आई होंगी शुरू में? ऑफ कोर्स शुरू में तो उनको बड़ा मुश्किल था उनके लिए, क्योंकि लैंग्वेज भी नहीं आती थी। फिर यहाँ पे तो फ्रेंच बोलते हैं, फ्रांसीसी ज़ुबान, और मैं बाहर होता था, वो घर में, फिर बच्चों की परवरिश करनी, एक बड़ा मतलब एक लॉन्ग जर्नी थी, बड़ा टफ टाइम गुजारा उन्होंने, उस वाइफ ने भी और मैंने भी। और फिर एक डेस्टिनी थी हमारी जी, जिसमें ऊंच मतलब है कि ऊंच नीच आती रही है। अच्छा वक्त भी देखा और बुरा वक्त भी देखा। सबसे अच्छा वक्त या खुशी का दिन कौन सा था? खुशी का दिन वो था कि जब मेरे वो डॉक्यूमेंट बन गए थे, वीज़ा मिल गया था यहाँ का रहने का, सदर मित्रा के दौर में। मित्रा के दौर मुझे एक आज़ादी से वो मिल गई थी। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो से भी उनके बड़े तल्लुकात हैं। हाँ, डेफिनेटली। तो उनके दौर में वो मुझे डॉक्यूमेंट यहाँ पर से परमिट मिल गया और मैं फिर आज़ादी से घूम फिर सकता था और अपने मुल्क जा सकता था। तो फिर मैंने जाके शादी की, वाइफ को लेके आया। तो ये सब मित्रा की मेहरबानी है, सदर में। और आई नो हिज फैमिली, आफ्टर आई बिकेम वेरी क्लोज फ्रेंड टू देम। कैसे? वो ऐसे कि मित्रा जो था वो तो मेरे से, मैं उसको जब वो दिखाता था वो मैगजीन जो मैं बेचता था, शाली दो यारा के लिए, तो वो कुछ एनेक्सिस किस्म का, एनेक्सिस होता है ना, इस किस्म का मैगजीन था। क्रिटिसाइज करता था हर वक्त, तो उसको वो पसंद नहीं था। तो कहता था ये अली मैं je n'achète pas, c'est dangereux। तो फिर वहाँ से उसके बाद फिर उसकी बीवी से, उसकी बेटी से, जो उसकी
मिस्टर से उसकी जो बेटी थी ना नजरीन, उससे मेरे ताल्लुकात ऐसे हुए कि जिस शख्स ने मेरी किताब पब्लिश की ना, वो एक ब्रासरी है, जैसे ये आपका फुकेत है, वहाँ पे एक सेंट पे एक ब्रासरी है जिसको कहते हैं लिप, LIPP। तो वहाँ पे एक पब्लिशर मुझे मिल गया, उसने मेरी वहाँ दावत कर दी लंच पे। तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं पहली दफ़ा कोई मेरी दावत कर रहा है, वो भी लिप में। तो वो ज़माना था इंटरनेट का, तो मैंने कहा शायद ये पेपर्स का जो काम था बहुत डाउन गिर गया था, मैं कहा शायद ये मुझे कुछ जॉब दे रहा है। तो वो जॉब नहीं थी, बल्कि वो मुझे उसको एक आइडिया है कि मैं इसकी किताब पब्लिश करूं। तो मैंने वो उसका लंच एक्सेप्ट किया, तो वहाँ पे हमारी दोस्ती होगी। तो उसी टेबल पे उसने, जिस टेबल पे मैं यहाँ खाना खाता था आके, वही टेबल उसने मेरे लिए रिजर्व किया था। तो वहाँ पे मैंने उसके साथ लंच किया। तो वहाँ से कहानी असली शुरू हुई। फिर वो कहता है मैंने तुम्हारी किताब छापनी है अगर तुम चाहो तो मैंने कहा व्हाई नॉट। तो फिर मैंने वहाँ उसको बताया कि आपको मैं बता, ये आपकी फॉर इंफॉर्मेशन कि मैं ऑलरेडी अपनी एक ज़िंदगी की डायरी लिख रहा हूँ। तो और भी खुश हो गया वो, ऐसे कि वो फिर हमें टाइम गेन हो गया, हमारा टाइम गेन किया हमने। वो जो मैं डायरी कितनी किताबें लिख चुके हैं? मैंने 2 किताबें अपने ज़िंदगी के मौजूद। तो अच्छा, आप कितने मुल्कों में गए हैं? तकरीबन 50-60 मुल्क तो देखे होंगे मैंने। कैसे? मैं पहले शिप पे काम करता था फ्रांस में आने से पहले मैं शिप पे रहा हूँ। तो मेरा शिप था, मैंने ज्वाइन किया था रोटरडैम से। मैं एथन से बाई रोड गया था एम्स्टर्डम में होटल में रहा। वो अपने जो था हमारी टीम, उनके साथ हम 5-6 थे। तो नेक्स्ट मॉर्निंग वी वेंट टू रोटरडैम। वहाँ जाके मैंने शिप ज्वाइन किया। तो वो उन्होंने मुझे वो वर्दी दे, वो जो यूनिफॉर्म उसका वेटर जो पहनता है, वो वाइट सा कोट और होती है जो टाई सी काली पैंट। तो मैंने काम शुरू कर दिया वेटर का। यस वेटर बन गया वहाँ पे ऑफिसर्स मेस में। तो 2 साल वहाँ पे शिप किया। फिर शिप आया था मार्सेल्स से हमने इंजन लोड किए थे, इंजन डीजल इंजन। चाइना उस वक्त फ्रांस इंजन बेचता था चाइना को, अब चाइना मेरा ख्याल है बेच रहा है फ्रांस को। अब उल्टी हो रहा है मेरा ख्याल जाता है। और किस किस मुल्क में गए? पहले हम सिंगापुर में रुके थे, वहाँ से फिर शंघाई, वहाँ पे हमने डी लोड किए इंजन। वहाँ से हम न्यू ऑरलियंस चले गए अमेरिका से हम इटली आए, इटली से फिर। तो ये जो घाट पे गए, मुल्क में गए, क्या तजर्बा किया, क्या सीखा तो बहुत कुछ जी। हर मुल्क में वो तो हर मुल्क का एक अपना कल्चर था, अपनी ट्रेडिशंस थी। मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी, मैं माल्मो में था, माल्मो स्वीडन के माल्मो में। तो वहाँ पे ये चीज़ें होती, ये साइकिलें बगैर लॉक के खड़ी होती थी रोड्स के ऊपर। कोई 70s की बात है ये। तो कोई चोरी नहीं होती थी, कुछ नहीं होती थी। अब तो चेंज हो चुका है यूरोप में, अब तो चोरियाँ चकारियाँ बहुत हो रही हैं इसमें, पूरे वेस्ट यूरोप में। पहले ये जो नॉर्दर्न कंट्री थी ना, ये स्कैंडिनेवियन, यहाँ पे लोग बड़े पीसफुल थे। तो अब तो वहाँ भी पता नहीं दुनिया भर के लोग पहुँच गए हैं। तो हम जैसे लोगों ने बहुत यहाँ पे ना उल्टे सीधे काम किए हैं, जो कि वो भी उनमें भी हैं, गोरों में भी। तो कुछ हमारे भी अपने गैर मुल्की जिन्होंने यहाँ पे इनका कल्चर तबाह कर दिया है। अब आप अपना सोचते हैं कभी वापस पाकिस्तान जाके रहने का, या आप यही रहेंगे? नहीं, पाकिस्तान किसका दिल नहीं करेगा जी जाने को, लेकिन जब तक वहाँ पे तब्दीली नहीं आएगी। वो इमरान खान कह रहा था कि तब्दीली लाऊंगा, तो जब आ जाएगी तो फिर देख लेंगे। किस तरह की तब्दीली? तब्दीली ये कि ये यानी कि सिक्योरिटी हो, गुर्बत कम हो, करप्शन ना हो, ये चीज़ें कम हो, हर आदमी को इक्वल जस्टिस मिले, यानी करप्शन ना हो। तो फिर उसकी कोई इमेज बनता है मुल्क का। तो वहाँ से फिर कुछ पता चलता है मुल्क में कुछ काम हो रहा है। मैं ये नहीं कहता परफेक्ट हो जाए, परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता, कोई मुल्क भी परफेक्ट नहीं है किसी मुल्क का। किसी तो अब आपको क्या पेंशन मिलती है, क्या करते हैं, कैसे? मुझे पेंशन मिलती है थोड़ी सी, लेकिन मैं फिर उसके साथ साथ ये अपना अखबारों का काम भी करता हूँ, गुजारा चलता है, ठीक गुजारा हो जाता है। खाने कौन से खाते हैं, फ्रेंच या पाकिस्तानी? खाने में तो सब कुछ ही खाता हूँ जी, मुझे तो अपने भी पसंद है, इनके भी पसंद है, खा ले तो इनके भी कुछ अच्छे खाने। ख्वाब पाकिस्तान के देखते हैं या फ्रांस के? जब रात को ख्वाब कोई नजर आता है? अब मैं तो ख्वाब तो अच्छे ख्वाब तो कहीं कभी नहीं है जी, अब क्या बताऊँ मैं।
पाकिस्तान में भी बड़ा कठिन वक्त देखा था, यहाँ पे भी, लेकिन ये कि यहाँ पे फिर कुछ कदरे बेहतर है वहाँ से, यानी कि लाइफ इज़ मोर पीसफुल एंड वी आर लिविंग रिस्पेक्टेबली, और बच्चे भी यहाँ फिर ग्रो अप हुए हैं। क्या क्या कर रहे हैं बच्चे? कुछ लोग बच्चे उन्होंने मास्टर्स की हुए हैं, अपनी जॉब कर रहे हैं, एक की सबसे बड़े की अपनी कंपनी है, वो मतलब एक खुद कफील है, सब अपने अपने सेटल्ड है वो। तो यही एक मेरा मिशन था जी, यही एक मेरा गोल था। तो सबसे पहला ड्रीम तो यही था मेरा कि मैं घर बनाऊं। पहले हम जो वो कच्चे कोठे में रहते थे वहाँ पे, अब जहाँ पे खटमल जी, मैंने हमारा खून खटमल मैंने देखे वहाँ पे अपनी लाइफ में। और मेरी माँ बेचारी गर्म उपला हुआ पानी डालती होती थी खटमलों को मारने के लिए। तो अब वहाँ पे पिंडी में आपका घर है? पिंडी माशाल्लाह अच्छा खासा घर है हमारा, रेस कोर्स ग्राउंड के पास। तो रात को हमें म्यूजिक, ये जो क्लासिकल म्यूजिक होता है ना, इसकी तो जरूरत ही नहीं होती थी, क्योंकि वो जो वहाँ का जो मच्छर है ना, वो म्यूजिक सुनाता था। ये रात को जो ये क्लासिकल म्यूजिक होता था। ये रेडियो था जी मेरा, क्लासिकल म्यूजिक, हमें वो मच्छर काफी सुनाते। पाकिस्तान आप जाते रहते हैं, हाँ अब तो काफी तब्दील हो गया। हाँ तब्दील हुए, लेकिन हालात ज्यादा बिगड़े हुए हैं। उस वक्त तो गुर्बत थी, लेकिन हालात कुछ कदरे बेहतर थे। अब तब्दीली आ गई, लोगों में कंफर्ट जोन में चले गए, लेकिन अब और ज्यादा प्रॉब्लम्स हो गई, पॉपुलेशन भी बढ़ गई है, तो हसल एंड नस्ल ज्यादा हो गई है।